غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ طارق بن زیاد، فاتح اندلس، عالم اسلام کا ایک درخشاں ستارہ۔ اس جوان سال سپاہ سالار کی بدولت مسلمانوں نے اندلس اور اسپین پر 800 سال حکومت کی۔ داستان کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل گلوبل نالج کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ طارق بن زیاد نے اس اطلاع پر کہ اندلس کی فوج اکٹھی ہو چکی ہے اپنی فوج کو فوراً تیاری کا حکم دے دیا۔ وہ دوڑتا ہوا جبل الطارق پر چڑھ گیا اور اپنے سامنے اور دائیں بائیں زمین کا جائزہ لینے لگا۔ اس کے ساتھ مغیث الرومی کے علاوہ دوسرا تجربہ کار سالار ابو زویا طریف بن مالک تھا۔ وہ اپنی پسند کا میدان جنگ منتخب کر رہا تھا۔ اس نے ایک ایسے علاقے کی طرف اشارہ کیا جہاں اونچی ٹیکریاں تھیں، ان پر سبزہ تھا اور درخت بھی۔ تمام گھوڑ سواروں کو ان ٹیکریوں کے اندر بھیج دو۔ طارق نے اپنے سالاروں سے کہا، سواروں کے کماندار سے کہو کہ وہ سوار گھوڑوں پر سوار اور اشارے کے منتظر رہیں۔ اس نے سالاروں کو اپنی فوج کی ترتیب اور تقسیم سمجھائی اور ہدایات دیں۔ پھر وہ چٹان سے اتر آیا۔ جب ماہی گیروں اور ملاحوں کو روک لیا گیا تھا، انہیں یہ کہہ کر چھوڑ دیا گیا کہ اپنے گھروں کو چلے جائیں اور باہر نہ نکلیں۔ تیر انداز دستے کے کماندار کو اس نے خصوصی احکام دیے۔ اتنے میں اطلاع ملی کہ اندلس کی فوج آ گئی ہے۔ طارق بن زیاد اپنے ساتھ چند ایک دستے لیے آگے چلا گیا۔ ادھر سے تھیوڈومیر آگے آیا۔ وہ محافظوں کے نرگے میں تھا۔ محافظ اعلیٰ نسل کے جنگی گھوڑوں پر سوار تھے۔ تم کون لوگ ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ تھیوڈومیر نے بلند آواز میں پوچھا۔ یہاں کیا لینے آئے ہو؟ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ طارق نے پوچھا۔ طارق کو بتایا گیا۔ ٹھہرو ابن زیاد، جولین نے کہا، اسے میں جواب دوں گا۔ جولین اپنا گھوڑا آگے لے گیا اور تھیوڈومیر کے جواب میں بلند آواز سے بولا، پوچھتے ہو کیا لینے آئے ہیں؟ ہم اندلس لینے آئے ہیں۔ او نمک حرام، تھیوڈومیر نے للکار کر کہا، تو ہمارا باج گزار اور ہمارے ملک پر حملہ کرنے آیا ہے؟ یہ کن لوگوں کو ساتھ لایا ہے؟ یہ تیری اپنی فوج نہیں۔ تو پہلے یہاں لوٹ مار کر گیا ہے، اس لیے تو سمجھتا ہے کہ اب بھی زندہ واپس چلا جائے گا۔ ہوش میں آ اور جنگلیوں کے اس لشکر کو واپس لے جا۔ میری فوج دیکھ، تیرے پاس تو گھوڑ سوار بھی نہیں۔ میرے لشکر کو دیکھ، تیرے لشکر سے دگنا ہے۔ طارق بن زیاد کو اس کی زبان میں بتایا گیا کہ تھیوڈومیر اور جولین میں کیا باتیں ہوئی ہیں۔ طارق نے طبلے جنگ بجانے کا حکم دے دیا۔ طبل بج اٹھے اور طارق نے اپنے دستوں کو حملے کا اشارہ دے دیا۔ تھیوڈومیر اس گمانڈ میں مبتلا تھا کہ اس کے پاس مسلمانوں سے دگنی فوج اور 1000 گھوڑے ہیں۔ پیادہ مسلمان نعرہ تکبیر کے ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ تھیوڈومیر اپنے محافظوں کے ساتھ پیچھے چلا گیا۔ اسے خود لڑنے کی ضرورت نہیں تھی، اسے فتح کا یقین تھا۔ ادھر طارق بن زیاد اپنے حملہ آور دستوں کے ساتھ سب سے آگے تھا۔ تھیوڈومیر نے اپنے 1000 گھوڑ سوار پیادوں کے پیچھے رکے ہوئے تھے۔ دونوں طرف کے دستوں کا تصادم ہوا۔ مسلمانوں کو معلوم تھا کہ ان کے لیے یہ زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ واپسی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ جہاز جلا دیے گئے تھے۔ ان کے سپاہ سالار طارق بن زیاد کے خطاب نے ان میں نئی روح پھونک دی تھی۔ طارق نے ان 2-3 دستوں سے حملہ بڑا ہی شدید کیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد طارق پیچھے ہٹنے لگا۔ اس کے ماتحت کمانڈروں نے بھی پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ انہیں زندہ نہ جانے دینا۔ لڑائی کے قیامت خیز ہنگامے میں تھیوڈومیر کی للکار بلند ہوئی، یہ بھاگ رہے ہیں، بھاگ کے نہ جائیں، ہر ایک کو کاٹ دو، ان کے پیچھے جاؤ۔ طارق بن زیاد نے اپنے دستوں کو اور تیزی سے پیچھے ہٹانا شروع کر دیا۔ اسی تیزی سے دشمن کے دستے پسپا ہوتے ہوئے مسلمانوں کے پیچھے آئے۔ طارق نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ درمیان والے حصے کو اس نے اپنی کمان میں رکھا تھا، اسی سے اس نے حملہ کیا تھا اور ان دستوں کے ساتھ وہ پسپا ہو رہا تھا۔ پسپائی تیز ہو گئی، نعرے خاموش ہو گئے اور مسلمان ایسی جگہ آگے جہاں گھنے درختوں کی بہتات تھی اور ایک طرف لمبی ٹیکری تھی۔ اندلس کے دستے جب ان درختوں کے نیچے آئے تو ہر درخت کی گھنی شاخوں سے ان پر تیروں کا می برس پڑا۔ مسلمان تیر انداز ٹیکری پر بھی چھپے ہوئے تھے، انہوں نے بھی دشمن پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ اندلس کے ان دستوں میں پیادوں کے ساتھ گھوڑ سوار بھی تھے۔ تیر انداز بہت قریب سے تیر چلا رہے تھے، اس لیے کوئی تیر ضائع نہیں ہو رہا تھا اور تیر جسم میں دور اندر تک چلا جاتا تھا۔ یہی وہ خصوصی ہدایات تھیں جو طارق نے اندلس کی فوج کی آمد سے پہلے تیر انداز دستے کے کماندار کو دی تھیں۔ دشمن کے آنے سے پہلے ہی تیر اندازوں کو درختوں اور ٹیکری پر چڑھا دیا گیا تھا
और तारक की पसपाई का मकसद ये था कि दुश्मन को तीर अंदाजों के जाल में लाया जाए। ये चाल कामयाब रही। ऐलान कर दो कि दुश्मन के घोड़ों को तीर ना लगें। तारक बिन ज़ियाद ने हुक्म दिया, हमें घोड़ों की जरूरत है, दुश्मन का कोई सवार जिंदा न जाए। बड़ी बुलंद आवाज से ये ऐलान होने लगे। थियोडोमिर अपने इन प्यादा और सवार दस्तों का अंजाम देख रहा था। उसके पास अभी बहुत फौज थी। इधर मुसलमानों की फौज के दो हिस्से, एक दाएं और दूसरा बाएं खड़े थे। थियोडोमिर ने एक ही बार इन दोनों हिस्सों पर हमले का हुक्म दे दिया। तारक की पहले से दी हुई हदायत के मुताबिक ये दोनों हिस्से और ज्यादा दाएं और बाएं चले गए ताकि दुश्मन की फौज और ज्यादा बिखर जाए। बर्बर मुसलमान बड़े होनहार जंगजू थे। लड़ना, मरना और मारना उनका मशगला था। इस्लाम ने उन्हें लड़ने का नया ही जज्बा और एक मकसद दे दिया था। अब तो उनके लड़ने के अंदाज ही कुछ और थे। पहले वो अपने अपने कबीले के नाम पर लड़ा करते थे। खुद ईसाई मोरहो ने लिखा है कि उंदलस की फौज में लड़ने का वो जज्बा नहीं था जो मुसलमानों में था। उंदलस के फौजी अपने आप को बादशाह के मुलाजम समझते और तनख्वाह के लिए लड़ते और तनख्वाह के लिए जिंदा रहना चाहते थे। बड़े पादरी भी शाही खानदान के अफराद, उमरा और वज़रा की तरह ऐशो इशरत में जिंदगी गुजारते थे। उंदलस में यहूदी हासी तादाद में आबाद थे, लेकिन ईसाइयों ने उन्हें गुलाम बना रखा था। यहूदियों की लड़कियों की इज्जत भी महफूज नहीं थी। कोई नौजवान और खूबसूरत यहूदी लड़की नजर आती, पादरी के हुक्म से उसे गिरजे की मलकियत में दे दिया जाता। बताया ये जाता कि इस लड़की को नन बनाया जाएगा, लेकिन उसे पादरी अपनी कनीज बना लेता था। ऊपर के तबके और मजहबी पेशवाओं के इस किरदार के असरात फौज में भी पाए जाते थे। मल्लाहों और माही गिरों ने सलार मुगीस रूमी को बताया था कि उनके मुल्क के फौजी किसी खूबसूरत लड़की को देखते हैं तो जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। मुसलमानों ने उंदलस के लश्कर का हमला जज्बे और रवायात के मुताबिक रोका। वो तादाद में कलील थे, लेकिन लड़ने के जज्बे से सरशार थे। थियोडोमिर को तवक्को थी कि उसकी इतनी ज्यादा फौज इन कलील तादाद मुसलमानों को काट कर परे फेंक देगी, लेकिन इस पर अकब से क़यामत टूट पड़ी। इनका बंदोबस्त तारक ने पहले कर रखा था। बंदोबस्त ये था कि तारक ने सवार दस्ते को दुश्मन के पहलू में खड़ी टेकरियों के अंदर छुपा दिया था। अब जब दस्तों को उसने हमले और सोची समझी पसपाई में इस्तेमाल किया था, उन्हें वो जरा दूर का चक्कर काट कर टेकरियों की ओट में सवार दस्ते के पास ले गया। सवार दस्ते में सिर्फ 300 सवार थे। तारक ने सवार और प्यादा दस्तों को हुक्म दिया कि टेकरियों की ओट में इंतहाई तेजी से आगे निकल जाएं और उंदलस की फौज पर अकब से हमला करें। थियोडोमिर के लिए तारक की ये चाल गैर तवक्को थी। उसका ख्याल था कि उसका अकब महफूज है। तारक ने अकब से हमले की क़यादत खुद की थी। उसके दोनों सलार मुगीस रूमी और अबू जोया तरीफ सामने से उंदलसी फौज से बरसरे पेकार थे और तारक के उकबी हमले के मुंतजिर। तारक 300 घोड़सवार और लगभग 2000 प्यादों के साथ अकब से उंदलसियों पर छपटा तो बेशतर इसके कि उनके जर्नैल थियोडोमिर को पता चलता कि इसकी फौज पर पीछे से क्या आफत टूट पड़ी है। उसके कमोबेश 2000 आदमी कट चुके थे और इनमें से जो मरे थे वो होलनाक चीहों से अपनी फौज पर दहशत तारी कर रहे थे। तारक ने हुक्म दिया कि दुश्मन के घोड़ों को जख्मी नहीं करना, घोड़ों को अपनी जरूरत के लिए सही और सलामत पकड़ना था। घोड़ों के सवार जख्मी होकर गिरते थे तो घोड़े बेलगाम होकर इधर उधर भागते दौड़ते और अपनी फौज को रोनते फिरते थे। तारक के तीर अंदाजों ने उंदलसियों के लिए अपनी ही मुसीबत खड़ी कर रखी थी। वो दरख्तों से उतरते थे और करीबी दरख्तों पर चढ़ते थे और ऊपर से तीर चलाते थे। थियोडोमिर अपनी फौज को भगदड़ में पिसा रहा था। उसकी तरतीब बिखर गई थी। उसके अहकाम किसी को सुनाई नहीं दे रहे थे। उसकी फौज ने फर्द फर्द होकर भागना शुरू कर दिया था। उसकी फौज की आधी नफरी कट चुकी थी। कोई जख्मी गिरता तो प्यादों और घोड़ों के कदमों तले कुचला जाता था। मुगीस जोलियन ने मुगीस और रूमी से कहा, चंद एक जांबाज निकालो जो थियोडोमिर को जिंदा पकड़ लाएं। लड़ाई की सूरत देख रहे हो? मुगीस ने कहा, इस हाल में उस तक पहुंचना मुमकिन नहीं, मुझे 5-6 बर्बर दे दो। उपास ने कहा, मैं तुम्हें अपने मुहाफिज दस्ते के 4 मुहाफिज दे देता हूँ। मुगीस और रूमी ने उबास से कहा। वटीजा का भाई उबास 4 आदमी जो घोड़सवार थे साथ लेकर चल पड़ा। थियोडोमिर का एक नायब उसे कह रहा था, क्या तुम दुश्मन के हाथों मरने की तैयारी कर रहे हो? क्या रह गया है हमारे लिए? क्या तुम मुझे यहाँ से निकल भागने का मशवरा दे रहे हो? थियोडोमिर ने नायब से पूछा। झंडा लपेटो और निकलो, नायब ने कहा। आधी फौज कट गई है, बाकी भाग रही है। थियोडोमिर सब कुछ देख रहा था। मुसलमानों का कहर और गजब भी देख रहा था। मुसलमानों ने अपने से दुगनी फौज पर दहशत तारी की, फिर उस फौज को काटना शुरू कर दिया। खुद थियोडोमिर पर खौफ तारी था। उसकी निजात की एक ही सूरत रह गई थी कि भाग निकले। उसने इस सूरत हाल को कबूल कर लिया और अपने परचम बरदार से कहा कि परचम लपेट कर नीचे कर ले। लहराता हुआ परचम उसकी निशानदही कर रहा था। परचम गायब होते ही थियोडोमिर की बाकी मांदा फौज का रहा सहा हम भी खत्म हो गया।
और देखते ही देखते मैदान जंग में लाशें रह गईं, कराहते हुए जख्मी रह गए, जिनमें से बाज उठे और हलने की कोशिश करते गिरते और अपने हैमोक को घसीटते थे। उंदलस वालों के घोड़े भाग रहे थे। घोड़ों को पकड़ लो, तारिक बिन ज़ियाद ने कहा, और माले गनीमत इकट्ठा कर लो। थियोडोमीर उंदलस का मंजा हुआ जर्नैल फरार हो चुका था। कुछ दिनों बाद शाह उंदलस राड्रक अपने जर्नैल थियोडोमीर का पैगाम पढ़कर गुस्से से आग बगोला हो रहा था। वो उस वक्त अपने दारुल हुकूमत तुलिता में नहीं था। वो तुलिता से कई दिनों की मुसाफत दूर एक शहर पंपोलना में था। इस इलाके में जर्मनी के कुछ लोग आबाद थे। उन्होंने उंदलस के लोगों पर अपना असर और रसूख पैदा करके बगावत करा दी थी, जो बड़ी संगीन सूरत इख्तियार कर गई थी। मोरहो ने राड्रक को जहां ऐशो इशरत और बदी को फरोग देने वाला बादशाह लिखा है, वहां ये भी लिखा है कि वो मैदान जंग में कवि से कवि दुश्मन के लिए आसमानी बिजली बन जाने वाला जंगजू था। वो अपने शाही वकार पर जरा सी आंच भी बर्दाश्त नहीं करता था। बागियों के लिए वो मौत का फरिश्ता था। उसे पंपलोना के इलाके में बगावत की इतला मिली तो अपने किसी जर्नैल को कुछ फौज देकर वहां भेजने की बजाय वो खुद फौज लेकर वहां चला गया। बागियों ने मुकाबला तो किया, लेकिन राड्रक के कहरो गजब को बर्दाश्त न कर सके। राड्रक ने इस मार्के में जिंदा रहने वाले बागियों को भागने न दिया। इनके लीडर को गिरफ्तार कर लिया, जो उंदलस का बाशिंदा नहीं था। इसके चंद एक साथी भी पकड़े गए, और अब सिर्फ ये बागी ही नहीं बल्कि इनके घरों की औरतों पर भी अताब नाजल हो रहा था। बागियों को ऐसी जालमाना अजीतें दी जाती थीं जिनसे वो जीने के काबिल नहीं रहते थे, लेकिन वो मरते भी नहीं थे। राड्रक उन्हें मार मार कर जिंदा करना चाहता था। वो जब बेहोश हो जाते थे तो राड्रक के हुक्म से उन्हें एक मैदान में फेंक दिया जाता था और शहर के लोगों को बुलाकर मैदान में खड़ा किया जाता था, और एक आदमी ऐलान करता, ये बागी हैं, गद्दार हैं, ये शहनशाह उंदलस के कहर से वाकिफ नहीं थे। हर रोज आकर इनका हाल देखो और इबरत हासिल करो, और डरो शहनशाह उंदलस के अताब से। ये बागी हैं, गद्दार हैं। इनकी औरतों के साथ तो बहुत ही शर्मनाक सलूक हो रहा था। रात को उन्हें बरहना करके राड्रक के दरबारे आम में नाचने पर मजबूर किया जाता था। साथ ही साथ उन्हें कोड़े मारे जाते थे। राड्रक वहां मौजूद होता था। ये दरबारे आम था, इसलिए इंतजामिया और फौज के अफसर भी वहां मौजूद होते थे। वो इन औरतों के साथ शर्मनाक हरकतें करते और कहके लगाते थे। आहर शराब में बदमस्त होकर ये अफसर औरतों को अपने साथ ले जाते थे। एक तारीख नवीस अलमकारे ने एक नोहेज लड़की एस्तोरिया का जिक्र तफसील से किया है। उसकी उम्र 14-15 बरस थी। वो बागियों के लीडर की बेटी थी। इस कमसिन लड़की को राड्रक ने अपने लिए रख लिया था और इसके साथ वो वहशियों जैसा सलूक कर रहा था। पंपलोना में जहां वो रिहाइश पजीर था, वहां से अक्सर इस लड़की की चीखें सुनाई देती थीं। राड्रक बागी लीडर से इंतहाई जालमाना तरीके से इंतकाम ले रहा था।